Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm back with another video where I will be giving the part 3 of the vocab section with the help of newspapers, and I will be giving you some good words, their synonyms, phrasal verbs, and other important aspects, other important concepts, how to understand and how to get the various sense given in the lines or paragraphs. So let's go ahead without delaying it. So the first word here is resumes. Okay, so resume means we know that restore, to bring back to the same place or to restart, right? We can have other word restart, or we can have a phrasal verb start over. So these words can be understood, right? So India resumes tourist visas to Chinese, यानी इंडिया ने वापस चाइनीज को टूरिस्ट वीजास देना शुरू कर दिया. Okay, let's go ahead with the next one. Next is Uttarakhand government prioritizes youth skilling, empowerment and growth. The word here is prioritize. So prioritize means what? You know that. Prioritize means to prefer, or uh, to give some preference over someone, right? प्राथमिकता देना, हिंदी में कहते हैं प्राथमिकता देना, यानी किसी को किसी चीज से पहले इम्पोर्टेंस देना या समझना या उसके बारे में कुछ करना, राइट? So prioritizes youth skilling, empowerment means to give strength, ठीक है, ability, right? Authority. So these are the synonyms of this empowerment. Okay, next is West Singhbhum sub postmaster held for graft. West Singhbhum sub postmaster held for graft. The word here is graft. Now what is the meaning of graft? Graft is here is a case of bribery. So graft can be understood the part of corruption also. Bribery, corruption, you know, घूस या घूसबाजी कह सकते हो, राइट? सो वेस्ट सब पोस्टमास्टर को पकड़ा गया, हेल्ड मीन्स यहाँ पर पकड़ा गया है ग्राफ्टिंग के लिए, ग्राफ्ट काम के लिए, ठीक है? लेट्स गो अहेड. Ranchi pedestrians at risk as two-wheelers misuse footpaths. Pedestrian, the word here is pedestrian. Pedestrian means the people who walk on foot, ठीक है? We can say walkers, पैदल चलने वाले जो होते हैं ना, पैदल चलने वाले वॉकर्स हो गए, लाइक स्ट्रॉलर्स, STROLLERS, स्ट्रॉलर्स, पैदल चलने वाले. पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले, यानी रांची पे जो पैदल चलने वाले जो लोग, जो फुटपाथ बना हुआ ना यहाँ पे, ये पैदल चलने वालों के लिए होता है, मीन्स पेडेस्ट्रियंस के लिए होता है. बट यहाँ पे देखो, यू कैन सी बाइक्स एंड स्कूटीज आर रनिंग ओवर देयर, सो इट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ रिस्क. एट रिस्क मतलब, एट रिस्क का मतलब हो गया खतरे में, ठीक है? सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन. Nadda nod to upgrade 6 Sadar hospitals into medical colleges. Right? Nod. The word here is nod. Nod means to approve. Approve as a verb and approval as a noun. Right? So here it is verb. So sorry, noun. अप्रूव यानी स्वीकृति देना, राइट? किसी चीज को परमिशन देना, टू गिव क्लियरेंस. ओके, सो अपग्रेड करने के लिए 6 से 10 अस्पताल को अपग्रेड करने के लिए परमिशन दिया गया है, स्वीकृति दिया गया है. ओके, मेडिकल कॉलेजेस को में बदलने के लिए, राइट? लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन. मैन ट्रैम्पल्ड टू डेथ बाय एलिफेंट इन कोडरमा. कोडरमा में इंसान को कुचला गया हाथी के द्वारा, राइट? यानी और कुचल के मार दिया गया. ट्रैम्पल टू डेथ मीन्स
यू नो कुचला और कुचलने से मर गया, राइट। तो ट्रैम्पल इज द मेन वर्ड here. ट्रैम्पल मीन्स कुचलना, and English we can have tread, right? Tread or walk over, or simply we can have very simple word crush, ठीक है। So these are the words. देखो टू दैट, यहाँ ध्यान रखना कि ये ट्रैम्पल तो कुचलना हो गया, टू दैट मतलब हो गया कुचलने से मर गया, स्टैब्ड टू दैट, ठीक है, बीट टू डेथ। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन हियर, जिससे कि उसका मृत्यु हो जा रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज Pak steeped in terrorism says India as Islamabad racks up Jammu and Kashmir in UNSC, ठीक है। देखो racks up and steeped in, this is a both are phrasal verbs, okay। So steep in means होता है like we can say deeply immersed, मतलब पूरा घुला हुआ, IMMERSED, पूरा घुला मिला हुआ यानी पूरा समाया हुआ, पूरे टेररिज्म यानी आतंकवाद में पूरा घुला हुआ है पाकिस्तान। सेज इंडिया, इंडिया ने कहा, एंड इस्लामाबाद रैक्स अप जम्मू एंड कश्मीर इन यूएनएससी। रैक्स अप मतलब रिकॉल करना, नाम लेना, रिकॉल करना, टू रिमेम्बर, रिकॉल मीन्स रिमेम्बर, उसके नाम लेना या उसके बारे में बातचीत शुरू करना, जो पुराना बात होता है मेनली रैक्स अप। सो रिकॉल, रिमेम्बर, टू ब्रिंग बैक समथिंग, bring back in memory we can say. Let's go ahead. Next. Jen had morphed photos. देखो morphed, here it is the part of past participle, okay। So it can be taken as adjective here because this becoming an adjective is qualifying this noun। ये noun है, ये adjective का काम कर रहा है यहाँ पे, ये morphed और ये qualify कर रहा है। कैसा photos था? morphed photos था। morph का मतलब होता है to modify, edit, change और alter, okay। अब ये इसके जगह पे तुम ये सब लगा सकते हो like morphed, modified, edited, changed, altered, because ये past participle है, so all these will be in the same like format, but as a main verb you can understand these are the synonyms, right। so उसके बाद बदला हुआ फोटो था, altered फोटो था। let's move ahead with the next one। एससी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तेलंगाना डोमिसाइल क्लॉज फॉर मेडिकल एडमिशंस फ्लॉड। तेलंगाना डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्लॉज यानी मतलब ये जो रूल्स होता है उनके लॉ बुक्स में फॉर मेडिकल एडमिशन के लिए जो रूल्स है वो क्या है, फ्लॉड है। फ्लॉड है मतलब विथ एरर, फ्लॉड का मतलब विथ एरर, क्योंकि फ्लॉ का नॉर्मल मीनिंग होता है फ्लॉ एज अ नाउन, फ्लॉ मीन्स एरर, गलती, ठीक है, भूल। फ्लॉड इट इज अगेन पास्ट पार्टिसिपल, वो सिस्टम कैसा है, वो क्लॉज कैसा है, फ्लॉड है, विथ एरर है, इसमें गलती है, उसमें मिस्टेक है। दे कैन हैव अदर वर्ड्स फॉर दैट, राइट, डिफेक्टिव or faulty। I hope it is clear। so let's go ahead with the next one। SC seeks response from center and states on curbing heat wave deaths। seek का मतलब मैंने आपको बताया था, seek means to ask for, to demand, ठीक है, डिमांड करना। रिस्पॉन्स, सेंटर से रिस्पॉन्स मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने ऑन स्टेट्स ऑन कर्बिंग। कर्ब का मतलब होता है टू कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल और किसी चीज को लिमिट करना, राइट। restrain, we can have other word, restrain, okay। and check means जरूरी नहीं कि वो चेक सिर्फ हमेशा सही करने वाला चेक हो। check means also its meaning is to control। so these are the words curbing heat wave। heat wave मतलब लू,
ठीक है, लू चलता है ना, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। न्योमा एयरफील्ड इन ईस्टर्न लद्दाख ऑल सेट टू बी ऑपरेशनल। देखो वर्ड्स आर ऑल सेट एंड ऑपरेशनल। ऑल सेट का मतलब रेडी, ठीक है, फिट एंड रेडी, फिट एंड रेडी, ओके। एंड ऑपरेशनल मीन्स रेडी फॉर यूज, रेडी फॉर, कोई भी मशीन बनता है, कुछ भी बनता है, लाइक अगर ये इस्तेमाल के लिए मतलब लायक हो चुका है, सो इट कैन बी कॉल्ड एनी मशीन टाइप थिंग, इट कैन बी कॉल्ड ऑपरेशनल, प्लांट, मशीन, वट एवर, राइट। तो ये ऑपरेशनल होगा अक्टूबर तक, राइट। नेक्स्ट, AI crash skin in UK received wrong bodies, says lawyers. AI crash means एयर इंडिया क्रैश हुआ था अहमदाबाद में फ्लाइट 171 में। Kin, the word here is kin. Kin means relative, सगे संबंधी। रिलेटिव्स होते हैं ना, रिश्तेदार, ठीक है। रिलेटिव्स इन यूके, जो उनके यूके के में जो रहने वाले लोग थे, उनके जो रिलेटिव्स थे जिनका डेथ हुआ, उन्होंने कहा कि रॉन्ग बॉडीज मिला है, लॉयर्स ने कहा ऐसा, मतलब उनके। सो किन मीन्स रिलेटिव्स। आगे बढ़ते हैं। 100 plus 8 groups warned of Gaza mass starvation. The word here is aid and starvation. Aid means assistance, means as a noun assistance, or as a verb assist. Okay, so help, support, right? These all can be their it's synonyms, right? 100 plus 8 ग्रुप्स ने वार्न किया है कि गाजा में भाई बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में, मास में बहुत बड़े मात्रा में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स भूखमरी, मास हंगर, मीन्स भूख की वजह से जो मरना होता है वो बड़े स्केल पर जब होता है तो उसको स्टारवेशन कहते हैं, राइट। स्टारवेशन। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। आई थिंक दिस इज क्लियर। US strikes tariff deal with Japan, auto stocks surge. Strike a deal, देखो एक फ्रेज है ना, इडियम्स एंड फ्रेज। टू स्ट्राइक अ डील, स्ट्राइक का डील मीन्स तय करना, किसी डील को या किसी एग्रीमेंट को कंफर्म करना, ठीक है। टू साइन और कंफर्म अ डील और agreement. Okay, to strike a deal, to strike a deal means to sign a deal or agreement. Surge, the next word is here is surge. Surge means sudden increase, sudden increase, अचानक से बढ़ जाना, right? We can have other words for that. Rise, grow, jump, escalate. Escalate होता है ना, लाइक मॉल्स वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक सीडी जो होती है तो एस्केलेटर बोलते हैं। तो एस्केलेट मीन्स टू राइज अप, राइट। सो वी कैन हैव these words. Let's go ahead with the next one. Despite a 60-day grace rule, laid off H1Bs facing deportation procedures. Lay off, ये पास्ट फॉर्म है, ये है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है एम्प्लॉयज को बाहर, नौकरी से बाहर कर देना, ठीक है, छटनी कर देना। We can have the word for that, retrench. Okay, retrench, dismiss, dismiss, and other words like release, बाहर कर देना, release. Okay, so this is that. Deportation, the other word here is deportation. Deportation, so deportation means deport करना, बाहर निकाल देना, देश से बाहर निकाल देना, right?
डिपोर्ट, इसका वर्ब बनेगा डिपोर्ट एंड नाउन इज डिपोर्टेशन. सो word can be expulsion. Okay. We can have other words for that. Banishment. Banish मतलब बाहर निकलना. There is a verb and this is noun. Banishment. Or fine. These are the words that you have to remember, right? I hope this is clear. Let's move on. Procedures, you know that procedures means process, method, any kind of process like system, policy, process. Let's move ahead. Deferring to Trump, Senate pulls back on Russia sanctions. Defer means to postpone. ठीक है, डिले, आगे बढ़ाना, तारीख या समय को ज़्यादा लेना. ठीक है, ज़्यादा समय लेना. पोस्टपोन, डिले, प्रोक्रेस्टिनेट कैन बी देयर. Procrastinate. Okay. Next word here is pull back. It is a phrasal verb. So pull back means to withdraw. वापस लेना, कैंसिल करना, retreat or withdraw, pull back. Okay. पीछे हटना, you can say. Let's move on with the next. Revised anti-doping bill to meet WADA demands. देखो WADA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है. ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. देखो एंटी डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब लाइक इट इज अ काइंड ऑफ मेडिकल ड्रग, वी कैन से, मीन्स द यूज ऑफ ड्रग फॉर परफॉर्मिंग बेटर. यानी आप कोई दवा लेते हो, कोई ड्रग लेते हो अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए. सो इट इज अ काइंड ऑफ इलीगल थिंग, इलीगल प्रोसेस. सो इट इज नोन एज डोपिंग. और एंटी डोपिंग मतलब उसके खिलाफ जो बिल है, जो विधेयक, जो एक बिल पास किया गया है, ठीक है, उसको लाया गया है रिवाइज्ड वाला, अच्छा वाला, टू मीट वाडा डिमांड्स. देखो यहाँ पर मीट का मतलब हो गया पूरा करना, फुलफिल द डिमांड बोलते हैं ना, फुलफिल द डिमांड्स. तो इसलिए मीट द डिमांड्स. किसका डिमांड? वाडा का डिमांड्स, राइट. सो एंटी डोपिंग क्लियर. आगे बढ़ते हैं. क्रांति's inspirational rags to riches story. rags to riches एक idioms and phrase. to rags to riches मतलब गरीबी से एक सफलता की ओर जो एक बढ़ने का कहानी होता है. गरीबी से पूरा अमीरी तक का सफर, गरीबी से सफलता तक. rags to riches, rags का मतलब कूड़ा कचरा, ठीक है, और riches मतलब अमीरी, राइट. सो rags to riches. क्रांति's का बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो rags to riches. बहुत गरीब थी, फिर अभी सफलता की कहानी दिख रही है. Let's move on with the next one. What is clear? Jamil emerges for front runner for India head coach role. Jamil, the words are emerges and front runner. Emerges, उभरना, ठीक है, के रूप में सामने आना, बनना, ठीक है. Emerge, its word can be like come out as, ठीक है. And we have another word for that, appear. Okay. So I hope this is clear. Front runner, leader, जो आगे चलता है, जो लीड करता है, टॉपर. We can have other word for that, forerunner. for का मतलब होता है अगला हिस्सा या आगे, forerunner. So I hope it is clear. Let's move on. Three charred in वैशाली एक्सीडेंट. देखो charred, जल जाना. ओके, charred मतलब जल गया पूरी तरह. charred means to burn, ठीक है. नेक्स्ट इज स्कॉर्च. ये सभी का मतलब जल जाना, ठीक है, थोड़ा या ज़्यादा जल जाना. वैशाली एक्सीडेंट में गाड़ी फंसी, गाड़ी में आग लगा या वट एवर, सो उसमें जल गए, ठीक है.
बर्न और स्कॉर्च। इसका सिंपल वर्ब V1 है 4, V2 V3 में डबल आर हो जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। धनबाद इलीगल माइन केव्स इन सेवरल feared trapped। ट्रैप मतलब फंस जाना, पता ही है। इलीगल, यू नो दैट, इलिसिट, गैर कानूनी, इलिसिट। ओके, अनलॉफुल, जो लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है। ओके, केव्स इन एक फ्रेज है यहाँ पे, फ्रेजल वर्ब केव इन। केव इन, केव इन का मतलब होता है धंस जाना, धंस जाता है या गड्ढा हो जाता है धंस करके। दैट इज द मीनिंग ऑफ केव इन। सो केव इन, वी कैन हैव अदर वर्ड फॉर दैट, कोलैप्स, ढह जाना, गिर जाना, धंस जाना, राइट। हॉलो, हॉलो अंडर या हॉलो बीनीथ। ओके, आई होप इट इज क्लियर। केव इन, इलीगल माइन जो था वो धंस गया और बहुत लोगों के फंसे होने का डर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तेजस्वी हिंट्स एट पॉल बॉयकॉट। हिंट एट, किसी चीज की तरफ इशारा करना। पॉल बॉयकॉट, पॉल मतलब इलेक्शन, बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, राइट। सो लेट्स हैव सम वर्ड्स फॉर दैट। शन, boycott means shun, snub, snub, reject, these are the words for that। okay, abstain from, दूरी बनाना, परहेज करना, abstain from। so these are all synonyms of this boycott। think over, बहुत गहरा सोचना, right। to consider or ponder। so these are very important synonyms you have to remember। these are very helpful, I'm telling you guys again। these are going to help you in all the exams that are coming in a nearby time, that is bank PO or SSC। so you must give a revision and practice it on daily basis। okay, so think over means consider, ponder, you know। let's move ahead। opposition protest on Bihar, SIR disrupts parliament proceedings। ये short form of parliament proceedings means कार्यवाही, यानी और जो सारे हियरिंग्स वगैरह होता है, सारा डिस्कशंस वगैरह होता है, उसको कार्रवाई कहते हैं, प्रोसीडिंग्स, एक के बाद एक स्टेप कुछ होना। अपोजिशन, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, यू नो दैट। SIR is something like special intensive revision। disrupt, disrupt means भंग कर देना, बिगाड़ देना, right। disturb, disturb, we can have other words for that। okay, disturb, like disturbance, disturb, you know that। so I hope it is clear। disorder, we can have disorder, upset, ठीक है, खराब कर देना, बिगाड़ देना, डिस्टर्ब कर दिए पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को अपोजिशन के प्रोटेस्ट की वजह से। ओके, लेट्स मूव ऑन। so I hope, sorry, we have finished। so I hope you have all understood this one। so these words were very important। I hope, I repeat again, you must revise, these words are very common, that are articles and passages, passage based questions or parajumbled questions। these words are very common, these will be, this concept will help you understand, and revision will definitely take place, so you must revise on daily basis। and good luck for your upcoming exams, and please suggest on which topic I should make the next video। so see you in the next video, bye bye।